बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Starting with the great name of Allah, who is the most merciful and beneficent. Dear student, today we are going to discuss unit number 5, last page. Previously we have discussed the summary of the whole lesson. So we have read about when the Holy Prophet ﷺ migrated to Medina. They lived different section of people. They were the idol worshippers, Jews, and the Ansar. So the Holy Prophet ﷺ first abolished a tribal distinction and drafted a Medina charter. And after that, the Medina charter was adopted in 1946 by the UN. The incorporation of the Medina Charter clauses in the Universal Declaration of Human Rights shows that Islam is the greatest protector of human rights. So we will discuss the Universal Declaration of Human Rights. अब हम Universal Declaration of Human Rights पढ़ेंगे, ठीक है? So what is the Universal Declaration of Human Rights? It is just a document presented in the UN that it gives all sort of freedom to the people and especially to the all people. This charter was approved on 10th December 1948 and made public. There are 30 points in it. A few are being mentioned here. We are all free and equal. We are born free. We all have our own thoughts and ideas. We should be treated in the same way. Don't discriminate. These rights belong to everybody, whatever our differences are. We all have the right to live and to live in freedom and safety. Nobody has any right to hurt us or torture us. We are all protected by law. The law is same for everybody. It must treat us fairly. Okay, let's come to the translation. The Universal Declaration of Human Rights. The Universal mean Alamgir Declaration mean Alamiya of Human Rights, Huquq Insani. This charter was approved. ये मीसाक मंजूर किया गया. Approve mean मंजूर कराना. On 10 दिसंबर को 1948 को and made public और मंजर आम पर लाया गया. ये मीसाक, this charter was approved on 10 December 1948 and made public. ये मीसाक 10 दिसंबर 1948 को मंजूर कराया गया और मंजर आम पर लाया गया. There are 30 points in all. इनमें 30 नुकात है. इनमें सब 30 नुकात है. A few are being mentioned here. इनमें से चंद का तज़किरा यहाँ पर किया जाता है. We are all free and equal. हम सब आज़ाद और बराबर हैं. फ्री मीन आज़ाद एंड इक्वल मीन बराबर. मतलब कि हम सब आज़ाद हैं. हम पे कोई बॉन्ड नहीं है, ठीक है? हर इंसान जो है वो पैदाइशी तौर पे आज़ाद पैदा हुआ है और सब बराबर हैं. You're all born free. हम सब आज़ाद पैदा हुई है. We all have our own thoughts and ideas. हम सब के अपनी thoughts mean ख्यालात and ideas और नज़रियात हैं. हम सब के अपने ख्यालात और नज़रियात हैं. We should all be treated in the same way. We should all be treated in the same way. हम सबको एक दूसरे के साथ एक जैसा बर्ताव करना चाहिए. हमें एक दूसरे के साथ एक जैसा बर्ताव करना चाहिए. Don't discriminate. कोई इम्तियाजी सलूक मत करे. मतलब तफरीक मत करे एक दूसरे के साथ. तफरीक मतलब कि किसी को कमतर मत समझिए. सब जो है बराबर हैं, तो फिर सारे जो है किसी के साथ तफरीक मत करें. डोंट डिस्क्रिमिनेट. किसी के साथ तफरीक मत करें. कोई इम्तियाजी सलूक मत करें. These rights belong to everybody. ये हुकूक सब के लिए है. Whatever our differences are, चाहे हमारे तफरुक़ात जो भी हो. Differences, इख्तिलाफ़ात, तफरुक़ात.
वी all have the right to live. हमें ज़िंदगी गुजारने का हक हासिल है. एंड टू लिव और रहना इन फ्रीडम आज़ादी के साथ एंड सेफ्टी और हिफाजत के साथ. मतलब ये है कि हम सबको ज़िंदगी गुजारने का हक हासिल है, वो भी आज़ादी और हिफाजत के साथ. Nobody has any right to hurt us or torture us. Nobody has any right to hurt us or torture us. Hurt mean तकलीफ देना और torture अजियत पहुंचाना. Torture mean अजियत पहुंचाना. Nobody किसी को भी has any right किसी को भी हमें तकलीफ देने या अजियत पहुंचाने का कोई हक हासिल नहीं. We are all protected by law. हम कानून के ज़रिए महफूज है या कानून हमारा मुहाफ़िज है. We are all protected. Protected mean हिफाजत में रहना, महफूज हो. By law कानून. कानून हमारा मुहाफ़िज है. कि मतलब ये है कि हमारे साथ अगर कोई इलीगल मिसहैप हो जाए, ठीक है, तो लॉ जो है, कानून जो है, वो हमारी हिफाजत के लिए मौजूद है. द लॉ इज़ द सेम फॉर एवरीबॉडी. कानून सब के लिए बराबर है. कानून सब के लिए एक जैसा है. इट मस्ट ट्रीट अस फेयरली. ये सब के साथ लाजमी इंसाफ करेगी. ट्रीट अस, इट मस्ट ये ज़रूर करेगी. ट्रीट अस ऑल फेयरली, सब के साथ इंसाफ. ओके. यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो थी वो ये जो है 10 दिसंबर 1948 को मंजूर किया गया और ये मंजर आम पे लाया गया. और इसमें जो है कुल 30 नुकात हैं, जिसमें से चंद का तज़किरा यहाँ पर किया गया है. सबसे पहले जो है द फर्स्ट एंड द मोस्ट जो है वी आर ऑल फ्री एंड इक्वल, के हम सब बराबर है और आज़ाद है. और हम जो है पैदा हुई है, आज़ाद पैदा हुई है. हमारे अपने ख़यालात और नज़रियात है. एक पॉलिटिकल फ्रीडम इनको दी जाती है इंसान को यहाँ पर, ठीक है. वी शुड बी ट्रीटेड इन द सेम वे. हमें सब के साथ एक जैसा सलूक करना चाहिए. किसी के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं करनी चाहिए. और ये जो हुकूक है सब के लिए बराबर है, चाहे हमारे इख्तिलाफात जो भी हों. और हमारे एंड वी हैव द राइट टू लिव इन अ फ्रीडम एंड सेफ्टी. हमें ज़िंदा रहने का हक हासिल है और रहना तो वो है हमारे आज़ादी के साथ और हिफाजत के साथ. और किसी को भी ये हक नहीं पहुंचता कि वो हमें अजियत दे या तकलीफ़ दे. और कानून हमारा मुहाफ़िज़ है और कानून सब के लिए यकसा होगी और ये सब के साथ लाजमी इंसाफ करेगी. मतलब कि गरीब अमीर इसका फ़र्क नहीं रहेगा. यहाँ पर कानून के नज़र में सब बराबर होनी चाहिए. So let's come to the next page. We all have the right to take part in the government of our country. We all have a right to lead a good life. Mothers and children, people who are old, unemployed or disabled, and all other people who have the right to be cared for. Education is a right. Primary education should be free. We have a duty to other people and should protect their rights and freedom. Okay. We all have the right, हम सबको हुकूक हासिल है to take part in the government of our country, कि हम अपनी मुल्क की हुकूमत में हिस्सा लें. कि this government is for all people. कि ये जो है एक ख़ानदान की जो हुकूमत नहीं होनी चाहिए. This is the political right of every human to take part in the government of their country. कि चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो एग्जेक्टिव हो, चाहे जो भी हो, ये जो है इंसान का बुनियादी हक है. एंड दिस इज़ वी आर ऑल हैव राइट टू लीड अ गुड लाइफ. वी हैव ऑल राइट, हम सबको ये हक हासिल है टू लीड अ गुड लाइफ, कि हम एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें. हम सबको ये हक हासिल है कि हम एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें. मदर्स, माए एंड चिल्ड्रन,
मदर्स, माए एंड चिल्ड्रन और बच्चे, पीपल हु आर ओल्ड और वो लोग जो मुअम्मर लोग हैं, अनएम्प्लॉयड बेरोज़गार हैं, आर डिसेबल्ड और माजूर हैं। अनएम्प्लॉयड मीन बेरोज़गार, आर डिसेबल्ड माजूर, एंड ऑल अदर पीपल और दूसरे लोगों का ये हक है, हैव द राइट, उनका ये हक है, टू बी केयर्ड फॉर, कि उनका ख्याल रखा जाए। माए बच्चे और वो लोग जो बूढ़े हैं और बेरोज़गार हैं और माजूर हैं, इन ऑल ऑफ द पीपल हैव द राइट, और दूसरे लोगों का ये हक है, टू बी केयर्ड फॉर, इनका ख्याल रखा जाए। एजुकेशन इज़ अ राइट, तालीम एक हक है। प्राइमरी एजुकेशन शुड बी फ्री, इब्तिदाई तालीम, प्राइमरी एजुकेशन मीन इब्तिदाई तालीम शुड बी फ्री, प्राइमरी एजुकेशन शुड बी फ्री, इब्तिदाई तालीम मुफ्त होनी चाहिए। फ्री मीन मुफ्त, तालीम एक हक है और इब्तिदाई तालीम मुफ्त होनी चाहिए। जितनी भी गवर्नमेंट सेक्टर्स की स्कूल है वहाँ पर जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है फैसिलिटी ऑफ फ्री एजुकेशन। In every country till to the 10th class, the government is providing this facility of education. These government sectors like the health, education, these are regulated by the government mostly. We have a duty, हमारा ये हक है to other people, दूसरे लोगों पर, and we should protect the rights, कि हम उनके हुकूक की हिफाजत करेंगे, and freedom, उनकी आज़ादियों का, कि हम उनकी आज़ादियों का, उनके हुकूक का खास ख्याल रखेंगे। ठीक है, सो here we have discussed the human rights. Human rights, what is human rights? Human rights जो इंसानी हुकूक है, but there is a huge difference between the human rights and हुकूकुल इबाद। डिफरेंस ये है कि हुकूकुल इबाद और हुकूकुल इबाद और ह्यूमन राइट्स में, कि ह्यूमन राइट जो है वो एक पॉलिटिकल राइट ऑफ ह्यूमन बीइंग कहते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास इस्लाम ने हमें हुकूकुल इबाद दिया है तो वो बहुत ब्रॉड टर्म है, क्योंकि जो हुकूकुल इबाद में आते हैं ना, वो एक हमारे जो पड़ोस होते हैं वो भी हमारे जो है हुकूकुल इबाद में आते हैं। क़यामत के दिन जो है आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप की हुकूमत किस तरह थी, ये थी, आपने उसमें हिस्सा लिया। ठीक है, क़यामत के दिन आपसे ये पूछा जाएगा जो आपके पड़ोस हैं वो तो भूखा रहा और आपने उनकी जो है ना पूछा, तो ये हमारे जो है ये हुकूकुल इबाद में आते हैं। और हुकूकुल इबाद में जो है वो अल्लाह की हुकूक जो बंदों की दी जाती है। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड हुकूकुल इबाद, एंड ह्यूमन राइट्स, दैट इज़ अ राइट ऑफ ह्यूमन